اور تسی مانگ کے کھانے والے وہ ساڈا لیڈر انہوں تسی دسوگے اس احتجاج کا اہتمام کیتا انہاں واسطے بھرپور تالیاں ٹیلی ویژن نے نہیں آپ کو بتائیں گے میں بتاؤں گا گھر کے فیصلے کوئی ساتھ والا گھر کرے آپ نے دیکھا یہاں پر تحریک انصاف کے ایک سائڈ پہ یہاں پر آر شہری جو ماضی میں دیگر جماعتوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے حالیہ حکومت اپوزیشن نے جو شرارت کر کے امریکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے حکومت کرایا آپ نے یہاں پر شہریوں کے تاثرات سنے یہاں پر کچھ اور شہری موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہیں گے السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ہم لوگ یہاں پر سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں صرف اپنے قائد کو اس لیے جواب بتانے کے لیے عمران خان تم اکیلے نہیں ہو یہ ساری عوام یہ سارے پاکستان تمہارے ساتھ ہے اور یہ کوئی پیڈ لوگ نہیں ہیں جو 5-5 ہزار یا 6-6 ہزار روپے دے کر بلائے گئے ہیں یہ کوئی پیسے دے کر بلائے گئے لوگ نہیں ہیں وہ شہباز شریف تم کہتے ہو ہم لوگ بھکاری ہیں تم کہتے ہو ہم لوگ مانگنے والے ہیں یہ بھکاری تو تم ہو جس نے 30,000 ارب روپے کا قرضہ ہم پر چڑھا دیا وہ بھکاری تو تم ہو جس نے ایک بچے کو مقروض کر دیا اور بھکاری تو تم ہو کہ ہماری آنے والی نسلیں آج وہ قرض اتارتی رہیں گی جو قرض عمران خان نے 3 سال میں اتارا جو قرض عمران خان نے اپنے ووٹ کا قرض اتارا 10 ڈیمز بنائے عمران خان نے اپنے الیکشن کے بارے میں نہیں سوچا اس نے اس غریب آدمی کا سوچا اس دیہڑی دار بندے کا سوچا جو لاہور میں جو مختلف شہروں میں دیہڑی دار 10,000-12,000 روپے کی دیہڑی لگاتا ہے وہ سڑک پر جب سو رہا تھا میرا لیڈر میرا قائد جب وہاں سے گزرا اس نے کہا آج کے بعد کوئی بھی پاکستانی ننگے سر اس کھلے آسمان کے نیچے نہیں سوئے گا اس کے لیے پناہ گاہیں کھولی وہ درد رکھتا ہے غریبوں کا وہ درد رکھتا ہے غریبوں کا اور ان لوگوں کا جن کے سر پہ چھت نہیں اس نے پورے پاکستان میں ہیلتھ انشورنس دی ہم لوگ کبھی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے ہم کام کاج والے لوگ ہیں کبھی بھی یہ سارے جتنے لوگ ہیں یہ کبھی کوئی شخص اپنے گھروں سے نہیں نکلے ہمیں بھی نیند پیاری ہے اپنا آرام پیارا ہے لیکن آج ہمیں یہ فرض ہے یہ ہم پر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض ہے ہم یہاں پر آگے یکجہتی کریں اپنے لیڈر کے ساتھ اپنے خوددار لیڈر کے ساتھ جس کو نہ ڈالر بیچ سکے جس کو نہ ڈالر خرید سکے نہ مال دولت دنیا کوئی چیز سے خرید نہ سکے وہ لیڈر ہے ہمارا صرف عمران خان پاکستانیوں میں صرف آخری پیغام دیتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا پاکستانیوں اس کی قدر کرو ایسا لیڈر دوبارہ نہیں ملے گا میں عمران خان پاکستان زندہ باد عمران خان جی ناظرین ماضی میں بھی بہت سارے احتجاج پولیٹیکل پارٹیوں نے کیے ہر ایک کا الگ الگ ایجنڈا تھا لیکن میں نے کتنے زیادہ لوگ نہیں دیکھے جو اس وقت عمران خان کو جب حکومت سے نکالا گیا یہاں پر احتجاج کرنے والوں میں 200-400 دیہڑی کمانے والے بندے بھی موجود ہیں یہاں پر رکشہ ڈرائیور یہاں پر مزدور ہر مرتبہ فکر کا بندہ جو ہے وہ اس وقت امریکی سازش کے خلاف برسر پیکار ہے ہمارے ساتھ کچھ اور شہری موجود ہیں ہم ان سے بھی ان کے خیالات جانتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے میں اپنے خیالات کا اظہار ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اسیروں کی بڑی خاص ادا ہے ہوتی نہیں قوم جو حق بات پہ یکجا اس قوم کا حاکم اسی قوم کی سزا ہے میرے بھائیوں آج کے دن ہمارے نکلنے کا مقصد فقط ایک انسان ہے اور اس عظیم شخصیت کا نام عمران خان ہے عمران خان وہ لیڈر ہے کہ جس نے عالمی فورم پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے متعلق بات کی اس نے دنیا کے ہر
बात की, उसकी अनथक कोशिशों की वजह से आज 15 मार्च का दिन इस्लामोफोबिया के नाम के साथ मुतफिक किया गया, जिसका क्रेडिट किसी और को नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जाता है। आलमे इस्लाम में बहुत से लीडर हैं, लेकिन आज तक OIC या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म का, वो अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, किसी ने आज तक ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद नहीं किया। अक़वाम कुफ़ार के सामने आज तक किसी मुस्लिम लीडर ने ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद नहीं किया। फ़कत इमरान खान वो लीडर है। और मेरे पाकिस्तानियों, मेरे प्यारे भाइयों, इस लीडर की कदर करो। एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो था जिसने आज से 45 साल पहले अमेरिका की गुलामी से इनकार किया। उस लीडर को खोने के बाद आज इमरान खान को हमें मिलने में 45 साल लगे। आज अगर हम दोबारा इस लीडर को खो देते हैं तो मेरा यकीन करें सदियों तक कोई ऐसा लीडर नहीं आएगा जो आपके हक की बात करेगा, जो आपकी आज़ादी की बात करेगा। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आपसे यही गुजारिश है कि इस लीडर की कदर करें, इसका तहफ़्फ़ुज़ करें, क्योंकि इसका तहफ़्फ़ुज़ करना पाकिस्तानी होने के अलावा एक मुसलमान होने के नाते ही हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इमरान खान जी नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ ख़यालात सुने, मुख्तलिफ वर्कर्स के, मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग यहाँ पर मौजूद थे। इसमें अगर मैं कहूँ कि 3 साल 8 माह में जो इमरान खान ने इस्लाहात की है, जो मुल्क पाकिस्तान का जो मोराल है पूरी दुनिया में बुलंद किया है, इसकी नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन क्योंकि यहाँ पर डॉलर का मामला है, वो लोग जो नस्ल दर नस्ल हमको एक बिरयानी के डब्बे पर, एक कोल्ड ड्रिंक पर हमारा ज़मीर जो है खरीद कर ईमान में पहुँच जाते रहे हैं। लेकिन ये 2022 है, सोशल मीडिया का दौर है। हर बंदा जो है यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर ये जितना भी क्राउड है सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं, यहाँ पर मुख्तलिफ जो पार्टियाँ हैं उनके जो वर्कर मौजूद हैं, जो कि ये जो पिछले 2-3 माह से जो मिक्स अचार जो खिचड़ी पक रही थी मुकम्मल आशना है उससे। तो हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो अपने ख्यालात का इज़हार किस अंदाज से करते हैं और क्या पैगाम देते हैं। मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर शहरियों का कहना है कि महंगाई कोई इशू नहीं है, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है और इमरान खान है उस जैसा लीडर पूरी दुनिया में नहीं मिलता। और यहाँ पर एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आप ये जो हाल चल रही है उसके हवाले से क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इमरान खान के साथ हैं, पहले भी इमरान खान के साथ हैं, आइंदा भी इमरान खान के साथ है, क्योंकि हम बकारी नहीं हैं और हम अपने लीडर के साथ हैं। हम उस लीडर के साथ कभी नहीं जा सकते जो छोड़ के भाग गया था। हम इमरान खान के नज़रिए में हैं और ये जो चूचों का मरबा बन गया है, इधर कोई PDM बन गई है, फजलुर रहमान आ जाके हमें दीनी दर्स दे रहे हैं और ये चूचों का मरबा इंशाल्लाह हम इनके खिलाफ आखिरी दम तक मज़ामत करेंगे और इनका कब्र तक पीछा करेंगे। वो अदालतों में जो मामला हो गए, जो अपोजिशन में जो सरकार जीतने का लिए सारा कुछ छुपानी है सबके सामने है। अब आप क्या कहेंगे कि इमरान खान साहब को उनकी कैबिनेट को दे देनी चाहिए या हुकूमत में रह के फायदे देने चाहिए? मेरे ख्याल में हुकूमत को इस्तीफे नहीं देने चाहिए और उधर ही, क्योंकि कुछ बहुत इलेक्शन एक पार्टी बन चुका है, अदालतें जिस तरह पार्टी बन गई हैं और साथ में जुडिशरी उसने तो बिल्कुल बेड़ेगर किया है और ये सारे इकट्ठे ये ऐसे हो गए हैं जैसे ये पहले खुद ही कहते हैं कि पहले हमारे ऊपर जुडिशल coup है वो मेरे ख्याल में इमरान खान के साथ हुआ, बाकी तो किसी के साथ हुआ ही नहीं। मर्डर जो होने थे पीछे भुट्टो के साथ वो भी एक साजिश थी। अब ये दूसरी मरतबा उन्होंने, क्योंकि इमरान खान ने OIC की कॉन्फ्रेंस 2 मरतबा बुला दी थी, उसने तो एक जुर्म किया था, लेकिन ये जुर्म इमरान खान ने 2 बार कर दिया और अमेरिका को सीधे ललकार दिया, क्योंकि इमरान खान का कहना है कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह ताला की है और ये लोग जो पीछे हैं जो कह रहे हैं कि हमारा सब कुछ ही अमेरिका है, इनके एसेट बाहर है, इनके बच्चे बाहर हैं, इनका सब कुछ बाहर है। और इमरान खान ने जो आखिरी दम तक स्टैंड लिया उसने सब अदारों को सपोर्ट कर दिया कि ये देख लो ये आपके अदारे हैं।
अब आप एहतजाज कर रहे हैं, किस तरीके से आप इमरान खान को हम इनका मिशन घर घर पहुँचाएंगे। पहले भी स्ट्रगल किया, दोबारा भी हर बार वर्कर एहतजाज करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, FIR कटवाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब टिकट की बारी आ जाती है तो वक्त और मफाद का बोला और वो आगे आ जाता है। इसके हवाले से क्या ये अलमिया रहा है हमेशा से पाकिस्तानी सियासत का कि जब भी टाइम आता है वक्त वर्कर को नज़रअंदाज कर दिया जाता है हर जगह पे, वो इवन के उससे हाथ मिलाना भी कर दिया जाता है। लेकिन हम पूरा उम्मीद है कि जो गंदे अड्डे से पार्टी हैं इंशाअल्लाह ताला अब जो नई क़यादत है इमरान खान पे हमें तो दोबारा से वर्कर को इज्जत देंगे और जी नाज़रीन, ये मियाँ शकील साहब थे, राना नवीद, इकबाल साहब, हाफिज़ ताहिर साहब से मुलाकात करवा चुका। आपने उनके भी ख्यालात को सुना, उनकी भी गुफ्तगू को सुना। उम्मीद करता हूँ कि ये वो बंदे हैं जब तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई तो ये आटे में नमक के बराबर लोग थे जो जगह जगह पे बैठ कर इमरान खान के मकसद तस्लीम करते थे। और जब हमारे अवाम में भी नहीं था कि इमरान खान हुकूमत बनाएगा या एक दीवानगी का ख्वाब लगता था, लेकिन ये देखिए पिछले 3 साल 8 माह इमरान खान को मैंडेट मिला, लेकिन ये मिक्स अचार है। इन्होंने मिलकर अमेरिका की अमदाद को लेकर बंडल बांट करके इमरान खान को जो मजबूर कर दिया कि वो हुकूमत छोड़ चुके हैं। तो हमारे साथ एक और नजरियाती कारकुन मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। वो अहकाम बाला तक अपने जो पैगाम पहुँचा रहे हैं, ये जो डेली एसोसिएशन पंजाब के तवज्जुह से, न्यूज़ TV के तवज्जुह से, 14 न्यूज़ के तवज्जुह से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ के जो नजरियाती वर्कर हैं वो उनकी जो आवाज़ को ऊपर तक सुना जाए। लेकिन यहाँ पर जाहिर है कि एजेंसियाँ भी मॉनिटर कर रही थी। यहाँ पर जितना क्राउड था, जितने लोग थे, तहरीक इंसाफ के अलावा भी यहाँ पर लोग मौजूद थे और जो कि बिल्कुल खालसतन इमरान खान की हमदर्दी में बाहर निकले हैं और वो समझते हैं कि जिस तरीके से पिछले 1 माह से इमरान खान सबको लहरा रहा था कि इसको देखो, लेकिन हर बंदा इस वक्त शऊर रखता है, सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है। तो हम इनसे जानते हैं कि आपके पास से कौन से अल्फाज रह गए हैं जो जी न्यूज़ साहब क्या कहें। बात ये है कि ये जो बंदे हैं नू लीग के, ये बहुत गलत बंदे हैं। हम PTI से जानते हैं, हम इधर कोई नाम ही नहीं। ये इमरान खान का बंदा है, इंशाल्लाह कामयाब बंदा है। इन्होंने हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में हमको बताया है। हम इंशाल्लाह ताला इमरान खान के साथ हैं और रहेंगे इंशाल्लाह, और इसके साथ ऐसे खड़े होंगे इंशाल्लाह। हमारा खून इसके साथ है और आने वाले वक्तों में आपको पता चलेगा कि इंशाल्लाह ये जो इमरान खान है ये आपके लिए क्या कर सकता है। इंशाल्लाह हम इसके साथ खड़े हैं। और जी आज आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम में हाफिज़ साहब ने एक जुमला बोला, बड़ा मज़ा आया। तो मैं भी पंजाबी में कहूँगा, उन्होंने कहा कि लत मारी उनका वो भी सीधा हो गया। इमरान खान ये जो मैं सूरत देख रहा हूँ, इमरान खान के जो सिपाही हैं, वर्कर हैं, वो मज़ीद खड़े हैं। इमरान खान के साथ जो हमदर्दियाँ हैं वो मज़ीद खड़ी हैं। वर्कर तो वर्कर जो नए लोग आए हैं हमारे साथ, एक और एक दरीना साथी, एक पुराने वर्कर, बहुत माशाल्लाह पढ़े लिखे बादशाह बंदे हैं जो माजी में इमरान खान की जो तर्जुमानी का अंजाम देते रहते थे। माना वाला भी हम उसे जानते हैं। आप क्या सामने ये जो हो रहा है, कोटा क्रेसी हो रही है, पाकिस्तान की डॉलर्स की सियासत हो रही है पाकिस्तान में, हमें हमारे हमसाए कह रहे हैं, हमें अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि पाकिस्तानी सियासत को ज़रा गहरी नज़र से देख लें, उसके ऊपर नज़र है। तमाम सियासतदानों को इत्तेहाद करके रहना चाहिए। हमें बाहर वाले डिक्टेट करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों को पाकिस्तानी कहलवाना चाहिए। झंडे ले लें हम लोग अमेरिकन और छतों पर लगा लें कि कोई यार अमेरिकन, हम उनकी
कि नौआबादियाती निज़ाम के अंदर दोबारा से जा रहे हैं। तो आई थिंक सो कि पाकिस्तान के अंदर जैसी सियासत चल रही है, ख़ासतौर पर 11 जमातें 12 जमातें मिलकर एक शख्स को निकालने के लिए हम वापस से 1973 में खड़े हैं। उसी जगह पर मुफ्ती महमूद साहब थे जिन्होंने साहब की फांसी में जिया का साथ दिया था। आज उनके पोते असद महमूद साहब को पार्लियामेंट में जा नहीं सकते थे, वो इलेक्टेड नहीं थे, डीजल साहब जा नहीं सकते थे, तो उनके बेटे जो हैं वो वहाँ पे खड़े, पोता खड़ा उस पार्टी के साथ जिसको नाना को बिलावल के नाना को फांसी दिलवाई थी, आज उसके साथ खड़ा हुआ ये कह रहा है कि हम जमहूरियत के लिए खड़े हैं। ये जमहूरियत तो नहीं हुई, ये तो लोटा क्रेसी हुई। और फिर हमारे ख़ास तौर पर जैसे कुछ अदारे हो गए, हमारे सहाफ़ती इदारे हो गए, चैनल के एक ही नतीजा मेरे ख्याल में ऐसे में पाकिस्तान का तो अल्लाह ही है। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की बात सुनी, यहाँ पर दूसरी जमातों के साथ अलग रखने वाले लोग हैं उनकी बातें सुनी, यहाँ पर आपने रिक्शे वालों की बातें सुनी, रेडी लगाने वालों की बातें सुनी। सब लोग महंगाई को भूल कर इस अमेरिकी गुलाम हुकूमत के खिलाफ बरसरे बेकार हो गए हैं। हमारे साथ एक यहाँ पर सीनियर साथी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। सर की कहो कि आज बहुत बड़ा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनकी कार पर उन्होंने परसों रात ही कार दे दी थी कि हम जो है जो रात 9 बजे, आज के दिन रात 9 बजे पूरे मुल्क में पूरे एहतजाज करेंगे। तो यहाँ पर आज उसी हवाले से कारकुनों का समंदर का पूरे मुल्क में, बल्कि आज पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरा हुए हैं। जी असर देखिए, असर तो पड़ता है ना, जब आवाम बाहर आती है तो असर तो पड़ता है। तो इसीलिए आवाम ने आज अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया है ताकि जो आने वाली हुकूमत है उसको पता चले। मानावाला में मेरा ख्याल काफ़ी आज देखने में आया। जी मानावाला में ये बहुत ही पुरअमन एहतजाज जो आज लोगों ने रिकॉर्ड कराया है, यहाँ पर पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। काफ़ी तादाद में लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने आज एक मिसाल कायम की है कि कोई किसी चीज़ को कोई खतरा नहीं था। यहाँ पर किसी की जानी में किसी का कोई जानी नुकसान सियासत में अपना किरदार जायज़ समझते हैं। हमारे साथ एक और नजरियाती वर्कर मौजूद है, जनाब शेर मोटा साहब, रहनुमा भी हैं। जानते हैं क्या जाना आवाज़ चल रही है, लेकिन हर कोई बात पकाव नहीं होता। और बहुत से लोगों के ज़मीर अब जाग चुके हैं जो अपने ज़मीर नहीं बेचते। इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में ये सहेल कोटा सर, हम खलील सजाद साहब से पूछे, खलील साहब आज इतना बड़ा क्राउड है, क्या कहेंगे इस क्राउड के मतलब? किस किस्म के लोग आपने देखे और किस किस्म के लोग थे, किन जमातों के साथ इमरान खान के साथ जा रहे हैं? शुक्रिया साहब, मैं भी खबर के लिए आपको आया हूँ। तो मैंने देखा है आज तारीख में पहली बार मैंने देखा है कि नौजवानों को इतनी बड़ी तादाद अपने काम काज छोड़कर इमरान खान के दौर में वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और बहुत अमन एहतजाज किया गया है और एक पैगाम दिया गया है कि वो ये सब लोग इमरान खान करते हैं। इमरान खान इन लोगों का ये सुना है और ये लोग इनके जो ख्याल है उनका यही कहना था कि इमरान खान है वो जो हमेशा जो सियासी रैलियाँ होती हैं, जलसे होते हैं, क्राउड होता है, उसमें आपको लोग तो काफ़ी नजर आते हैं, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तब तो रिजल्ट होता है। तो इसकी खास वजह क्या है? क्या लीडरशिप का जो है हमारी जो डोमेस्टिक लीडरशिप है उनमें कोई मसला है या लोग जो है सिर्फ तमाशा देखने को जाते हैं? जी सर, आपकी बात जो है ना असल में बात ये होती है कि इंसान के दिल से अंदर से जो बात निकलती है, लोग
यहाँ पे देखे इमरान खान ने कर दिया और लोग ये आपने देखा कि कितनी आवाम निकल के आई है, ये लोग दूसरे कितनी दूर से देहातों से आए हैं और इन्होंने ये रोज़ा इफ्तार किया। उसके बाद ये जगह पे इकट्ठे हुए और आप ये रात का टाइम हो गया है, ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैंने भी समझता कि ये लोग इमरान खान को सपोर्ट नहीं करेंगे जो दुनिया मरने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ये जो किसी भी मुल्क में जो यंग जनरेशन होती है, नौजवान होते हैं, मुल्क का असासा होते हैं और ये सब नौजवान के साथ जी नाज़रीन ने जितना यहाँ पर करोड़ है, माजी में ये भी सुनने को आता रहा है कि माना वाला है, लेकिन अब चूँकि बाजी बढ़ चुकी है, हालात बदल चुके हैं, कितना यहाँ पर क्राउड था, कितने यहाँ पर लोग थे तहरीक इंसाफ के दीगर जो इमरान खान की हमायत में थे। उम्मीद करता हूँ कि आइंदा जो माना वाला में हमारे इलाके में जो इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं लोग, वो वोट भी कास्ट करेंगे और अपना हक भी अदा करेंगे। उस्ताद जी आखिर में जो माना वाला के यहाँ पे जो आप कमेंट कर रहे हैं जो एक काम कर रहे हैं लेकिन मैंने एक बात तो देखी है, आज यहाँ पर बड़े मौजूदीन लोग भी मौजूद हैं और बड़े बड़े मैंने एक बात जो देखी है, मैंने इंटरव्यू भी किया है नौजवान का, जिसने ये कहा है कि वो सारी ज़िंदगी खाफ लीग का उसने कहा है कि वो सजाद सुन्नी साहब थे, मैंने इंटरव्यू किया है तो उनका ये अफवाह मैं बता देता हूँ करता हूँ कि उनका यही कहना है कि साम्राज्य ताकतों के खिलाफ जो खड़ा हुआ है तो वो इमरान खान खड़ा हुआ है। अब उनका आपने नारे दिया है, मैंने हमेशा हक और साथ दिया है। जैसा कि आज जो मैंने लोग आपको मिलवाए उनमें से 80% वो लोग थे जिनका सियासत के साथ कोई तल्लुक नहीं था, लेकिन ये जो अमरीकी गठजोड़ के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान को उतारा गया है, उनकी हमदर्दी में उन्होंने आज यहाँ पर कस्में उठाई हैं कि हम इंशाअल्लाह इमरान खान को फ्यूचर में सपोर्ट भी करेंगे, वोट भी करेंगे। और एक बात सुनने को आई, वो कहती है कि अगर इमरान खान किसी खंबे को भी टिकट देगा हम उस खंबे को भी जितवा देंगे। और यकीनन हमारी पैदाइश से कबल के ये डायलॉग है कि जब कहा जाता था कि जुल्म करने भुट्टो जियाले मुतवाले इस कदर कॉन्शियस रहते थे, एक लीडर तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर लफ्ज़ हमारा। जैसे कि राना नवीद इकबाल साहब बहुत ही दरीना कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बुनियाद माना वाला में इन लोगों ने रखी और हमारे सुल्तानी साहब दीगर जजाज साहब अली अब्बास गिलानी साहब सुहेल साहब बहुत सारे लोगों के आपने ख्याल सुने और इंशाल्लाह ये सारा प्रोग्राम मैं डेली एसेसन पे चलाने के लिए बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज की काविश है, आज की फिक्र है और जो आज के ख्यालात हैं, इनके साथ आप अपने ख्यालात का अजहार नीचे जरूर करेंगे। देखते रहिए पंजाब और मैं हूँ शाह सादत। अस्सलाम।